I'm in conversation with a formidable actor. I say formidable because he burst upon our mindscape with his performance in Paatal Lok. Ever since you've seen him in a variety of roles, including Raazi, this year, more importantly, he's impacted all our consciousness with Janne Jaan and his fabulous turn in Maharaj. I'm in conversation with actor Jaideep Ahlawat for the Danube Properties Filmfare OTT Awards 2024, co-powered by Hyundai. Thank you so much for being part of my conversation. I don't have to specifically tell you that I'm a huge fan of yours. When you spoke to me 2 years ago, something that you said left a big impact on me. You said your drama school teacher said, "आप में शिव ज़्यादा है, discover your Parvati." So have you discovered your feminine side now while you are acting? I think. Why are all your roles so alpha male? मुझे लगता है आप मुझे you'll just get up and slap me. नहीं ऐसा नहीं है. जैसे क्या होता है ना कि वो आई थिंक लिखे जाते हैं वैसे वाले, बट surprisingly even Paatal Lok, he has a feminine side. He's a softer guy also. You don't see him much in that space, but he is there. Janne Jaan, there is a softer side of Naren. Three of us, there's a very softer side of Deep Kamath. So yeah, I think थोड़ा भगवान ने चेहरा मोहरा ऐसा दे दिया कि उनको लगता नहीं कि कहीं से सॉफ्ट. पर आपसे लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, आपसे बात करने में इंटिमिडेट हो जाते हैं. पता नहीं क्यों, बट हाउ डू यू प्रोसेस योर एंगर थ्रू योर रोल्स? जनरली क्या होता है ना कि कुछ बड़ी हरकत होगी ना तो वो फिर भी इग्नोर हो जाती है. बहुत छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है क्योंकि उनमें से आपकी इंटेंशंस दिखाई दे रही होती है. कई बार कोई आदमी बड़े प्यार से आपको कुछ कह रहा होता है, पर आपको पता है कि वो आपको बेसिकली उंगली कर रहा है. हाँ, काइंड ऑफ, और आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है या आपको डिमीन कर रहा है. बट उसके शब्दों का चयन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. या फिर कोई भी इस तरह की छोटी चीज़ें जो आपको बहुत अपेरेंटली पता चलती है कि ये जिस तरह से कही जा रही है उसका मतलब वो नहीं है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा गुस्सा आता है. Has this power dynamics bothered you? Like, after Paatal Lok, आपने बोला ना, अंदर जो चल रहा है, बाहर जो चल रहा है, does it bother you? Like, do people call you, like I remember at one point, you used to talk about auditions when they would say, you're fit, not fit, Yeah. and that would bother you. But you are a fully trained FTII actor, you've done theatre. So this power dynamics अभी भी होता है? नहीं, ऑडिशन तो नहीं होता है, बट पावर डायनामिक्स मुझे लगता है कि चलते ही रहते हैं. उनकी शक्लें बदल जाती. एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में हो सकता है, पहले होता था, अब नहीं होता है, कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा हाँ वो अपनी पावर के हिसाब से काम कर रहा है, उसको पता है कि ही हैज़ द पावर टू कास्ट मी और नॉट. बट नाउ अब वो सेट्स पे हो जाता है कभी कभी. इन अ सीन विद यू मे बी ही इज फीलिंग दैट कैरेक्टर ऑफ माइन इज overpowering because that's how it's written. So then how do you resolve it? I don't do it. I don't do anything. It's my director's call. I don't get into that. Okay, oh, you are not doing this for me, or no. But sorry. have you been in a situation where a co-star has been overpowered by you and says, "नहीं, let's redo the scene," या ये scene को काट लो? Exactly, not overpowered by me. Overpowered by the character. By your character. By my character, because that's how it's written. It's written so powerfully that you can't do anything about it. ये तो आपकी modesty है कि No. A character like Maharaj, it is so powerful. Sometimes the scene, in a particular scene, your character is अजय बोलता हूँ उसको हिंदी में, उसको जीता नहीं जा सकता है. पर अगर आप किरदार निभाने के बजाय एक एक्टर बन गए हैं, उस वक्त एक नाम बन गए हैं, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ आ सकती है. कल को अगर मेरे अंदर ये चीज़ आ जाए कि यार मैं जयदीप अहलावत हूँ और मेरा किरदार बहुत ही इट्स नॉट पावरफुल इनफ, और मे बी जो एक्टर सामने है उसका जो किरदार है वो मेरे किरदार के ऊपर हाई भी पड़ रहा है, और अगर ये मेरे दिमाग में बात आ गई कि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है एज एन एक्टर, तो वो जैसे ही जयदीप अहलावत उसके बीच में कूदेगा वो मुझे बॉदर करना शुरू कर देगा. बट जब तक मैं किरदार के साथ रहूंगा वो बॉदर नहीं करेगा. When was the last time it happened to you? अभी कुछ 6-7 महीने पहले.
मैं समझ सकता हूँ कौन सी कहाँ पे, बट एक ऐसा 2-3 बार हो चुका है हाँ, अलग अलग जगहों पे, अच्छा. बट इट्स नॉट ऑन द फेस, बट यू कैन फील कि इट्स नॉट. Can co-actors be friends Yes. in such Oh situations? yes. Oh yes. Amazing. Like deep friendship. Deep friends. I personally feel so. जरूरी नहीं कि सबके साथ होता हो. But for example, we were doing Janne Jaan. Vijay and I go back long. FTI. 19 years now. We never bothered about anything. वो जो कर रहा है या मैं जो कर रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है, हाँ सही है, सही चल रहा है. So एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि दो इतने पुराने दोस्त जिन्होंने साथ में एक्टिंग को एज अ करियर चुना और सीखने की कोशिश की, साथ में फेल हुए, साथ में एक्सरसाइज की, साथ में उस माहौल में रहे 2 साल तक, उसके बाद भी जब कुछ खास नहीं कर रहे थे तब भी साथ में थे. तो और ना हमने कभी तैयारी की, किसी भी सीन की कभी रिहर्सल नहीं की. वाह. नेवर. वो कैसे है? बट पढ़ लिए, तूने सीन पढ़ रखा, याद है सारी लाइनें? हाँ याद. क्या करना है देखते हैं क्या होता है, चल. नेवर रिहर्स्ड इन सीन का. अच्छा चलो रिहर्सल करके देखते क्या आता, क्या चलना, सर रोल करते हैं. बिकॉज द रिलेशनशिप ऑफ नरेन एंड करण वाज सो इंटरेस्टिंग कि वो सालों बाद मिलते हैं. दे वर बेस्ट बडीज काइंड ऑफ, बट स्टिल कॉम्पिटिटर्स. But there is a distance, no? Like they're not like, you don't see them Yes. hugging each other. Yes, Is yes, that true. because of your character, of your own वो reticence? लेकिन हमारे पास बेस क्लियर था ना, हमारी दोस्ती की वजह से, हमारा एक दूसरे को जानने की वजह से अच्छे से वो बेस क्लियर हो गया. आप उसमें से क्या निकालना है वो आप निकाल सकते हो कि वी आर नॉट हगिंग टू मच, वी आर नॉट वेरी फ्रेंडली. तो दैट you can define later on with your director, with your the character you are playing. बेस की वजह से मुझे लगता है कि एक दूसरे के अंदर वो इनसिक्योरिटी नहीं आएगी. Tell me something about home. After a hard day's work, how do you unwind at home? मुझे लगता है कुछ भी घर पे करते हो अनवाइंड कर देता है आपको. यू डोंट नीड, वहां भी अगर एफर्ट करने पड़ेंगे तो फिर आई डोंट थिंक इट्स राइट स्पेस. गो होम एंड यू जस्ट बी इन योर स्पेस, वॉच समथिंग, ईट. घर पे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती. Did you ever have a concept of a dream home? Like, besides that, do you have like a favorite corner in your house where you do up or something? नहीं, इतना बड़ा घर नहीं है मेरे पास अभी कि मुझे कॉर्नर ढूंढने पड़े. 2 ही लोग हैं घर में, तो अगर ये भी कॉर्नर ढूंढने लगे तो दिक्कत हो जाएगी. हाँ, ड्रीम हाउस तो फिर मन्नत भी है, अब क्या करें उसका. But like when you travel abroad, like you see a piece of furniture or something, you say you try and replicate that in your home. ऐसा कभी होता है? She is tired now because of my random collection of things. हाँ. कि जब घर बड़ा लेंगे तो ये रखेंगे. जैसे mugs, somewhere around 400 mugs I have stored somewhere. यहाँ रैंडम चीजें हैं, वो थक चुकी है कि बस करो ये सब खरीदना. एंड आई वेंट टू नागालैंड फॉर एक्चुअली ट्वाइस. पहले पाताल लोक के लिए गए, फिर किसी और काम के लिए गए. दार्जिलिंग में हमने ये शूट किया. आई हैड नागा भालाज, खुकरी, सो मैनी थिंग्स जो अभी बक्से में बंद पड़ी हैं. वो वहीं से आर्ट डिपार्टमेंट ने उनको बेचारों को सील करके भिजवाई थी. वो ऐसे के ऐसे रखे हैं कोना पर. अब घर भर गया है, अब घर बड़ा ही लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है कुछ और खरीदने के लिए. Tell me, you're one of the few actors I've seen who physically also transforms. Whether it was Hathiram in Paatal Lok or it is your character in Maharaj. Is that very important, a physical transformation for an actor? अभी इस उम्र में ज़्यादा बढ़ाने में तकलीफ नहीं है. आप खाओ लेटो और सो जाओ. तो हाँ, जब पाताल लोक सीजन 1 के लिए बढ़ाया था वो उतना इजी नहीं था, क्योंकि सुदीप भाई की वही एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई प्लीज वेट बढ़ा लेना. मुझे हाथीराम पेट वाला चाहिए. मैंने कहा क्यों? बोले बस वो इमेज मेरे दिमाग में है. एंड थैंक गॉड आई सेड यस टू इट. आई वाज व्हाट 84 kg that time when I said yes to Paatal Lok season 1. And the time of shooting I was 102. And I realized later on why he was saying that. If I would have been that 84-85 kg guy, you will never see that Hathiram. It's not vulnerable. He's not tired. He's not failed. He does not look like he's a failed guy.
Thank God I said yes to his choice. Tell me, when you do an intense role like Maharaj Hmm. or any intense role, what is the kind of preparation that you go through? Well, external, because Adi sir said it. He said very interestingly, I what? I was again, it was lockdown in September 20th, I think. Uh, I went to Adi sir's office and तब तक हाँ हो चुकी थी फिल्म की ये फिल्म करेंगे जब जैसे ही लॉकडाउन पार्शली खुलेगा या शूट शुरू होंगे एंड देन डिसाइड कि फैब से हम ये शूट स्टार्ट कर रहे हैं तो ही सेड वेरी इंटरेस्टिंगली वन थिंग कि देख सबने मान लिया है कि तू अच्छा एक्टर है और तू ये कर लेगा तू अपनी नींद में भी कर लेगा ये बट अगर कुछ विजुअली अलग दिखेगा तो लोगों को और भी मजा आएगा मैंने कहा ठीक है सर तो क्या करना है बोले कुछ नहीं तुझे एक्सरसाइज करनी है बाकी हम देख लेंगे तो उन्होंने एक ट्रेनर है मेरे प्रज्वल शेट्टी उनसे मुलाकात हुई मेरी वहाँ दैट मैन इज अमेजिंग उन्होंने 6 महीने जो मेरे ऊपर काम किया है मेरी स्पेशली खाने को लेके क्योंकि आपकी हरियाणा से एक लॉकडाउन में क्या कर रहे थे आप सारा दिन पराठे खाते थे और सोते थे और कुछ काम नहीं द मोमेंट आई स्टार्टेड दैट नेक्स्ट डे खाना बन के आता था वो गर्म करो खाओ दैट्स इट ये आपके 3 मील हैं दिन के एक दिन पहले दिन मतलब वो 1 घंटे की जो एक्सरसाइज थी वो ऐसी थी कि आप उठ नहीं पा रहे हो बिकॉज आपकी मसल्स तैयार नहीं है सब हैंडल करने के लिए बट इट वेंट ऑन फॉर 6 months एंड यू कैन सी द रिजल्ट बात इंटरनल जहाँ तक है एक जस्ट एन एग्जाम्पल मैं एक दिन वो पढ़ रहा था तो मुझे वो क्योंकि वो केस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं इंटरनेट पे देख सकते हैं दो आई हैड दिस आइडिया कि उस वक्त इंडिया की सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा बट मैं फिर भी स्पेसिफिकली मुंबई जानने के लिए कि उस वक्त के लोग किस तरह से जस्ट टू हैव एन आइडिया कि लोग सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली किस तरह से रह रहे होंगे देन सडनली आई रियलाइज व्हाई आई एम डूइंग दिस द मैन थिंक्स दैट ही इज गॉड एंड गॉड्स दे दे आर अनअफेक्टेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड हाउ डज इट मैटर टू महाराज कि बाहर देश में अंग्रेजों का राज चल रहा है नो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं डजेंट मैटर टू हिम सो आई स्टॉप दैट द पॉइंट इज नाउ आई हैड टू रिमाइंड कॉन्स्टेंटली दैट दिस मैन बिलीव्स दैट ही इज अ गॉड बट इज नॉट व्हाई बिकॉज वो सालों से झूठ बोलता रहा है उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि वो कहा होता ना कि 1000 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है तो उसके सामने तो झूठ 10,000 बार बोला गया होगा गुस्सा उसको आता है पर उसको पता है कहानी निकालना है तुच्छ हैं सब मानव मात्र हैं सब उसके सामने तो वो गुस्सा नहीं निकालता है उसका गुस्सा कभी किसी ने देखा होगा तो बहुत पुराने टाइम पे देखा होगा खवास जो उसका कैरेक्टर जो साथ में रहता है उसको पता है कि आदमी बहुत गुस्सैल हो सकता है ये जानलेवा है मरवाया होगा लोगों को इसने और है स्क्रिप्ट में उसके हिंट्स पड़े हुए हैं आई जस्ट विश कि वो फिल्म का जो ओरिजिनल कट था वो लोगों ने देखा होता Coming to your character in Paatal Lok, what did you discover about yourself while acting? मैंने पहले भी बोली है बात सुदीप भाई को भी बोली है पर एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि उस काम ने मुझे इतना बड़ा कैनवस दिया जो सालों की मेहनत होती है आपकी तैयारी होती है उसको हर रंग में दिखाने का पाताल लोक में 9 के 9 रस है हर रस है उसमें उस कहानी में चाहे छोटा ही हो लेकिन हर रस है तो एक एक्टर के तौर पे मुझे उस स्क्रिप्ट ने जो भरोसा दिया है अपने ऊपर वो अद्भुत है तो मैंने बोली ये बात कि सुदीप भाई की राइटिंग ने मुझे एक बड़े ही साधारण से असाधारण अभिनेता बना दिया उनकी राइटिंग में है वो काबिलियत वो बहुत छोटे से सीन को इतने प्यार से कर देंगे इतने प्यार से लिख देंगे उनके शब्दों का चयन जो है वो जिस फ्लो में वो बात करते हैं
सीजन 2 की राइटिंग जब मेरे पास आई थी, बिलीव मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट इन वन गो. आई हैड टू रीड इट ट्वाइस, बैक टू बैक, just to understand that plot कि क्या हुआ. And you will never find him repeating what he has done. That story is so amazingly written, so well viewed, जिसको बोलते हैं ना, कि इतने कमाल के तरीके से उन किरदारों को उन्होंने आपस में घुसा दिया है कि without using any propaganda, any foul words or nothing like that, जो कि सीजन 1 के हिसाब से हो सकते थे, यूज किए जा सकते थे. बहुत सारी सीरीज में होता है ऐसा, जो हिट हो गया उसको दोबारा से रिपीट करते रहो. He did not do that. So I think Patal Lok updated my software. Have you been in any kind of dysfunctional relationships that they show in your movies or your series? Have you personally experienced that kind of dysfunctionality, like the one with between you and your daughter in, say, Patal Lok? I think everybody has some kind of strange situations, but it depends कि वो कितने. But did it affect you in any way? Yeah, it does. कितने लंबे चलते हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर है. If it's bothering you, I think you should just get out of it. So how do you draw the line between an actor and what's going on in your personal life? मैं वही कह रहा हूँ कि कोई आदमी किसी इंसान के रिश्ते या जो भी उसके दोस्ती यारी या डिसफंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, इक्वेशंस की बात कर लो, वो मैं काम तक नहीं लेके जाऊँगा. उसको वहाँ वो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है, बट अल्टीमेटली वो आपके काम को खराब नहीं कर सकता या उसको बेटर बना सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे सीख सकते हो, बट खराब नहीं होने देते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं पूछने वाला है. ये बात मैं बहुत जनरली बोलता हूँ अपनी टीम में से कि आई डोंट ट्राई टू स्विंग माई मूड एट द टाइम ऑफ वर्क, चाहे कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला या कि उस टेक में आपका मूड खराब था क्या, ये खराब हो गया, क्यों हो गया, या उस दौरान कुछ ऐसा हो रहा था. तो वो चीज़ आपको इफेक्ट ज़रूर करती है, आपका दिमाग उससे उससे प्रभावित होता है. लेकिन देन यू टेक ए चॉइस कि नहीं, इससे हम काम खराब नहीं होने दूंगा. तो उसकी एक बाउंड्री आप खुद ही दायरा बना लेते हो. And how do you handle all the female attention despite I being a don't have married that man? much. Oh my god! Oh my god! ये वाली. बट वही है, मैं सोशल मीडिया वाला बहुत ज़्यादा आदमी नहीं हूँ, तो मुझे काम आता है तब अपने पोस्ट डाल देता हूँ. ये बहुत परेशान रहती है मेरी टीम की, कुछ तो कर लिया करो. मैंने 1 महीने से 1.5 महीने से, मुझे नहीं पता, लास्ट अभी मेरी भांजी की शादी थी, उसमें 4 फोटो खींच के मैंने डाले थे बस. उससे पहले शायद 1-1.5 महीना पहले कोई रील थी, नो स्टोरीज, नथिंग. वो होता भी होगा तो मुझ तक पहुंचता नहीं है, सोशल मीडिया पे तो नहीं पहुंचता. जो सामने आता है उसको तो फिर आप इट्स ऑल थैंक यू, क्योंकि आपको समझ, जब कोई किसी काम के लिए आपको बड़ा ओवरवेलमिंग होकर जब आपसे बात करता है ना, वो आपको नहीं जानता है. उसके दिमाग में एक इमेज है जो उसका फेवरेट है, चाहे फिर वो महाराज हो, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो थ्री ऑफ अस हो. दे कैरी एन इमेज ऑफ यू इन देयर माइंड, जो उन्होंने अपने हिसाब से बना ली है. एंड व्हेन दे अप्रोच यू विद दैट इमेज, इट्स योर ड्यूटी नॉट टू ब्रेक इट. अदरवाइज वो डेवास्टेटेड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए. अगर सेकंड के लिए कोई आदमी आए, सर एक फोटो और उसका चेहरा देखने लायक होता है. Have you personally been devastated by anyone who you looked up to and had a conversation with them? नहीं, इस तरह से तो नहीं, पर मुझे ऐसा जरूर हुआ कि कुछ लोगों को मिलने के बाद है ना, आप जिस तरह से फैन थे वो रहते नहीं हो. आपको लगता है कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ. तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बहुत अच्छे फैन हो तो थोड़ा दूरी बना के रखो. हो सकता है कि आप ना रहो थोड़े टाइम बाद, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अगर ऐसा होता तो और ज्यादा हो जाते हो. What was your thought when you signed Janne Jaan? Like, did you base your character on something? Like, everything, your body language is so awkward and almost weird, and like I would fear to meet somebody like that in the Yeah. lift. Yeah, me too. So, did you derive it from somewhere? Was No, there any reference I point? haven't read that script जो originally जो नॉवल था या जो फिल्म थी. बट while I was reading that script once, twice, thrice, then
scene wise, and discussing it with the Shrida. There are very fine lines, threads there in the script. Okay, why he's like that? He's not a very shy guy inside his home, where he's alone. His walk is different, little different. He knows chess, खुद ही खेल रहा है सब. अंदर वो उसकी अपनी दुनिया में इज द जैसे वो अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखता है माया को, उसके सामने नहीं देखता है. जैसे उस गेट से बाहर निकलता है वो अलग हो जाता है. तो आई थिंक ये उस और बहुत सारी चीज़ें मिलती चली गई. मुझे नहीं पता वो किस तरह बना. जैसे उसकी वॉक जो है वो कुछ सीन्स में आप देखोगे वो अलग है, क्योंकि वो पहले 2 दिन के सीन्स हैं. एंड आई कुड नॉट फिगर आउट कि चल कैसे रहा है. वो तो दूसरे दिन के एंड में, या आई थिंक थर्ड डे फर्स्ट सीन हुआ एंड शिजो इज यस नाउ इट्स वर्किंग, दिस वॉक इज नाउ वर्किंग. मैंने कहा ओके. सो एक आदमी जो मौत के मुंह से जस्ट वापस आया है एक नॉक की वजह से. अगर वो नॉक उस दिन नहीं हुआ होता तो शायद मर चुका होता. और जिस वजह से जिंदा है अब उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी है. उस औरत की वजह से जिंदा है, अब उसी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई है. तो ही जस्ट रिटर्निंग बैक दैट फेवर ऑफ लाइफ. दूसरा, उससे उसका एक फायदा है, दोबारा मैथमेटिक्स से जुड़ गया है, क्योंकि उसी की वजह से मरने भी जा रहा था. तो इज सो कनेक्टेड फॉर हिम, द लव फॉर मैथमेटिक्स एंड द लव फॉर माया. देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ. तो एक अगर छूटेगा तो दूसरा मिल जाएगा. What is the best piece of advice that you have ever received and the worst piece of advice that you have ever received? कुछ लोगों ने बात शुरू में बोली थी, मुझे समझ नहीं आई थी. जैसे एक बार हमारी क्लास में ऐसे ही कुछ कुछ पर्सनैलिटीज आ जाती जो FTI में थे. तो इरफान साहब ने एक बार बोला था, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी. बोला सांस लेते रहना काम करते वक्त. सभी लेते हैं सांस, पर ये बात उस वक्त समझ नहीं आई कि जब भी आप काम कर रहे हो बस सांस लेते रहना. सबको ही बोला था. और ये बात उस दिन समझ में आई जिस दिन मेरा पहला प्रोफेशनल शॉट था. फिल्म आक्रोश, प्रियदर्शन सर और अजय देवगन उसमें खड़े हैं फ्रेम में, अक्षय खन्ना खड़े हैं. माय फर्स्ट टॉकी सीन जहां मुझे बोलना है किसी को कुछ, और कुछ 150-200 का क्राउड, पंकज त्रिपाठी, परेश जी, सब दिग्गज लोग खड़े हैं उस फ्रेम में. And I had to push Ajay sir something and shout on him. Oh God, I could have died. I was like shaking. मेरे पैर ऐसे काम मैं गिर जाऊंगा. That day I realized कि मेरा सांस सही नहीं चल रहा था. आपको सांस यहाँ आ जाती है, आपका जो सांस यहाँ से आ रही होती है वो छोटी सांसें हो जाती. मैं रीटेक लिया है मैंने, जाने जा के टाइम पे भी लिया, पाताल लोक के टाइम पे भी लिया मैंने, सेकंड सीजन में भी, 3 of Us के टाइम पे भी लिया, where apparently there is nothing wrong, which is what I did, or my director was like, why? Just because चलते सीन में I felt my palpitation was not right. And the worst, but worst वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना मुझे बड़ा अजीब लगता है. थिएटर के टाइम पे ज़रूरी, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, बट मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स हैं ना, उनको बेचारों को सारा दिन वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाते रहते हैं कि कैसे बात करनी है, तो कैसे ये किरदार कर. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप जीवन में कभी भी अपनी वॉइस मॉड्यूलेट नहीं करते हो टू शो योर इमोशन. यू आर एंग्री ऑलरेडी एंड देन योर वॉइस चेंजेस. यू आर वल्नरेबल ऑलरेडी, देन योर वॉइस चेंजेस. योर थॉट चेंजेस योर वॉइस. ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा भी नहीं हूं और पहले मैं चिल्लाऊंगा तब मुझे गुस्सा आएगा, नहीं. तो जो ये फेक वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाते हैं एक्टर्स को, उसमें फंस जाते हैं लोग. What is your take on acting schools and all of that? Are they like, I mean, there are things like, say, in Pondicherry there is Adi Shakti, Yeah. and there are lots of interesting and Yeah. seriously genuine. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे तो बेचारे बस दुकान ही है, सबका धंधा चल रहा है उससे, क्योंकि सब डरे हुए हैं. जितने लोग आते हैं उनमें से ज़्यादातर डरे हुए हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि उनको एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए.
तो जो जैसा बताता है वो वैसा फॉलो करते हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में बैठे होंगे वो आपको बताएगा कल को कोई कि भाई देखो ऐसे बनते हैं एक्टर, तो आदमी फॉलो करता है उनको। बट इन जनरल में अगर सही है, अगर सही हाथों में पढ़ते हो आप, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग जो है बहुत हेल्प करती है आपको। अगर जेन्युइनली किसी आप ऐसे स्पेस में, ज़रूरी नहीं किसी एक्टिंग स्कूल में हो, आप हो सकता है 4 वर्कशॉप करके, 10 वर्कशॉप किसी अच्छे टीचर के साथ या किसी अच्छे माहौल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इट्स जस्ट कि आपका प्रोसेस जो है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग वो थोड़ा छोटा हो जाता है। How do you constantly reinvent? Do you do workshops? Do you go to some sort of training? टचवुड बहुत सारा काम हो रहा है इसलिए एक्सपेरिमेंट रोज ही हो रहे हैं। तो आप जो जो आपके दिमाग में चलता है वो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक स्पेस है जहां आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। जब काम नहीं होता है तो रैंडम चीज़ें करते हैं। मतलब घर पे ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे थे, करता था भी मैं, कि आज आज 2-1 घंटे जो हैं वो आपका लेफ्ट हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये अब सिर्फ एक हाथ है जो वर्क कर रहा है, या एक आँख काम नहीं कर रही, एक पैर काम नहीं कर रहा है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती थी एफटीआई में जो हम करते थे, कि आपकी बॉडी चेंज हो गई है जस्ट बिकॉज़ कुछ डिसफॉर्म है बेसिकली। But can actors truly be friends? You think so? Because the kind of all the interests, either you're vying for the same roles or you're dating the same girls, everything is so. Can actors really be friends? फिर उसमें से ये होगा कि दोनों को ही बहुत सिक्योर होना पड़ेगा। Hmm. दोनों ही तरफ से आएगी, वो एक तरफ से नहीं आएगी। दोनों को काफ़ी सिक्योर होना पड़ेगा एक दूसरे की प्रेजेंस में, ये समझते हुए कि कोई किसी का कंपटीशन नहीं है। वो रिश्ते थोड़े कम होंगे बट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। What would you today, when you look back, tell a 20-year-old Jaideep? Don't take yourself too seriously. And this is not the end of life. Because I was in that frame of mind कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ करने लायक नहीं होगा। So yeah, very anxious, very bothered about that exam, CDS, SSB, UPSC द्वारा। Very scared कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे लगता है अभी उसको बताने जाऊंगा तो वो शायद SSB भी क्लियर कर देगा। That kind of confidence. That kind of confidence. If I talk to him right now, I think he would clear his SSB in first chance. Were you a good boyfriend? Were you a good husband? Are you a good husband? I think I am. Yeah. She's the one to answer it better. No, but tell me, like, do you have any relationship formula? Is there something like, of course, she has tolerated you for 15 years. That is also a big, huge achievement. Huge. But generally, what is your like? Is it easy to be married as an actor? Is it, and also she's also, I think, from FTI, right? Yes, but you need So, to FTI. 2 actors in the house. Is it tough? I personally feel that she never wanted to be an actor. वो just came to FTI because of me maybe. Oh, you were And- dating before FTI? Yes, just started. Okay. Starting knowing each other basically. Okay. And then she never pursued. She did some serial when I was not working, just to run the house. But it was her passion is dance basically. She's a Kathak dancer, trained, dance and writing. तो या वो कभी क्लैश हुआ नहीं, कि क्लैश का तो मतलब ही नहीं कि वो भी अगर एक्टिंग परस्यू करती तो ऐसा कोई क्लैश नहीं होना था। बट शी अंडरस्टैंड द trauma in me as an actor. Like she told me during Raazi that I started mumbling in my sleep. I could not sleep because I had nightmares that time. Why? Because I was watching so much stuff from spy world. And it was scaring me. I had every single night or other night I had this one same dream that somebody chasing me and I am under this bed, which somehow resembles to a film called Munich, where जो बम उसके अंदर बम लगा रखा है एंड उसके बाद उससे वहाँ निकल के वो अलमीरा में बैठा हुआ है। I had this visual so many times. So she started soothing me out that time. Even Paatal Lok के time पे भी, because I could not breathe properly. Stomach was high, so
Anxiety. एंग्जाइटी। Have you ever resorted to saying therapy, or because men and mental health is an issue. Oh, Most yeah. men don't talk about it at all. Nobody ये talks क्या about है? it. I've seen a lot of actors and नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे गांव में तो थप्पड़ लगा के सब ठीक हो बट ये जाता बात सही भी है किसी हद तक। गांव में मेंटल हेल्थ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बोल देते हैं ना एक दूसरे को। मेरे गांव में मेंटल हेल्थ आई डोंट थिंक, क्योंकि इतने मुंह फट है, इतने इतने ऑन द फेस हैं कि आप अंदर कुछ है ही नहीं तो मेंटल हेल्थ खराब क्या होगी। बड़े शहर आपको घोंट देते हैं, आप जो कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो कह नहीं पाते किसी से भी। तो आई थिंक ये बहुत हेल्प किया कि मैं एक ऐसे जगह से हूं कि जहां बहुत ज्यादा ऐसा घुटन वाला माहौल कभी कहीं नहीं था। यारों दोस्तों के बीच में आज भी जाता हूं तो उनकी जो बातें होती हैं, आपकी जितना बॉम्बे का स्ट्रेस होता है सब खत्म हो जाता है 2 दिन में, बिकॉज उन वहां कोई फिल्टर है नहीं किसी के पास। मुझे लगता है वो हमेशा काम को लेके ही हुई, जब भी हुई इस तरह की कोई चीज थोड़ी बहुत जब हुई, ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज्यादा कुछ बवाल खड़ा कर दिया, बट यू कैन फील द टेंशन ऑफ दैट कैरेक्टर इज somehow knocking at your mind basically. Oh, it's something going off, especially Raazi and Paatal Lok. Yes. What if you and the director are not on the same page? ऐसा कभी हुआ है? बहुत And बार। then what वो happens? बहुत सिंपल फंडा है, इधर यू कन्विंस हिम और हर with your logics, and if still he or she still wants to do, you surrender. It's your job, not mine. I can't. हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार आपको पता होता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, बस इसको भी पता नहीं कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल किसी सीन में आप किसी से बात कर रहे हो और आपको पता है कि यू कांट बी एंग्री एट दिस मोमेंट, बिकॉज आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। आपको पता है कि ये एंगर थोड़ा सा और बाद में जाकर रिवील होगा तो बेटर उसका इंपैक्ट आएगा। या यू कांट बी स्केयर्ड ऑफ हिम राइट नाउ, डोंट शो इट। यू माइट बी स्केयर्ड बट डोंट शो इट। बट समटाइम डायरेक्टर लाइक नहीं यार, डरे हुए नहीं दिख रहे हो, एंड देन गिव ऑल द लॉजिक्स, नहीं थोड़ा सा, देन इधर यू ट्राई टू प्ले इन बिटवीन समवेयर, और 2-3 खराब टेक दे दो, देन वो भी बोर हो जाए, नहीं थोड़ा सा और, देन यू। So you've never had arguments or serious differences with any of your directors? Not like fighting, हाँ. but definitely कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका ये लॉजिक है। और फिर मुझे समझ में आने लगा कि अगर इसके मन का नहीं किया तो वैसे भी सीन खराब कर देगा सारा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों में पड़ेगा। Correct. मैं अकेला तो नहीं संभाल पाऊंगा उस सीन को, तो बेटर कि इसको ये जो करना चाह रहा है उसी के अंदर थोड़ा सा अपना भी जोड़ दो, कहीं बीच में आप उसको मैनेज कर लोगे। बट अल्टीमेट गोल इज, अगर कुछ नहीं वर्क कर रहा है देन जो आप बोलो, नाउ इट्स नॉट माय चाइल्ड। When do you know, okay, I have to use technique here, or is it like a marriage of technique and your own talent? ये कैसा, how does that mix happen? I think it's very personal also. Everybody has his own process to deal with a scene or with the situation or the relationship of the scene. मुझे लगता है सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट टेक्निक काम होती है तब जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। अगर स्क्रिप्ट इलॉजिकल है तो फिर टेक्निक काम नहीं करेगी, फिर तो आपको उसको कुछ और तरीके से प्ले करना पड़ेगा। मतलब सो इफ यू आर फॉलोइंग ए प्रोसेस, the team and the writing has to be in sync, has to be logical, has to be interestingly, nicely written. Otherwise process won't work. Then you will day by day, scene by scene, you just try to make it interesting or whatever you can't. और जरूरी नहीं कि कई बार वो खराब हो, क्योंकि बस आपको ही समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल जाने भी दो यारो, यू कांट प्रोसेस दैट फिल्म लॉजिकली। अगर आप उसको लॉजिक्स में चलेंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे उस फिल्म, बट स्टिल इट इज वर्किंग। सो एक्टर नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसको तैयार करने की जरूरत है और इसके साथ खेलने की जरूरत है। करेक्ट। उसमें आप जाओगे कि यार ये लाश ऐसे थोड़ी चलेगी, नहीं ये ऐसे ही चलेगी। नाउ यू पुट योर बिलीफ इनटू इट। तो कई बार वो आप प्रोसेस का सब तैयारियों के साथ करते हो, लॉजिकल थिंकिंग के साथ करते हो, कई बार आप सब कुछ हटा देते हो एंड यू जस्ट बिलीव व्हाट इज हैपनिंग। That's how it has to be done. I did a film. I can't
disclose it right now, but I did a film. I tried कि देखता हूँ कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, and I hope it works. There's no logic in that, but still, you believe in that situation, and you go with the flow. देखा जाएगा जो. Is there anybody who calls out your bullshit? Like, if everybody says you're such a good actor, and then, when does the vanity and narcissism come in? Or is there somebody, how do you keep yourself rooted? अरे बहुत सारे लोग आसपास, उनको पूरी फिल्म में शायद एक सीन अच्छा लगा होगा, वो अच्छा था यार, बाकी तो ठीक है. बोलते हैं आप. अब हर फिल्म पे स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जाने जा में उनको एक सीन, अच्छा वो वाला बहुत अच्छा था, वो एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, उस सीन में से भी 2 एक्सप्रेशन, तो ये ना चाहिए, ये कहीं हवा में ना उड़ने देने वाले आपको. अच्छा. आसपास जितने दोस्त हैं, ये एफटीआई के भी जो लोग हैं, उनको आपको पता चल जाता है, उन्होंने काम देखा है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कुछ अच्छा था नहीं. क्योंकि जब अच्छा होगा तब बताएंगे. When do you think was the last time you gave a bad performance? बहुत सारी है, ऐसा कुछ ग्रेट कुछ है नहीं. आप मॉडेस्ट हो रहे हो. नहीं, मैं जैसे मुझे एक तो बहुत कॉफ्ट होती है, सबको पता है मेरी टीम में, मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ अपना. मुझे देखने के जब वो, मैं मॉनिटर पर नहीं जाता हूँ, मैं अपना काम नहीं देख पाता हूँ, और मुझे उसमें ज़्यादा खामियां दिखने लगती हैं, क्योंकि जब कर रहे थे तब से आप शायद थोड़े बेटर हो गए हो, या उस वक्त क्यों नहीं समझ में आई बात कि खराब दिखेगा. So you have worked with very many bad actors. Yeah. तकलीफ होती है. Bad, I would say bad. They don't know what they're doing. That's it. They are here just to become famous. That's it. And also then you work with such, whether it's a Manisha Koirala, whether it's a Kareena, you work with That's even, what I have you worked work with with debutants. amazing actors. You work with debutants. So what is it that you feed off each other? I mean, any of your actors, is there anyone who has impacted you in any way? It could be a man, woman, somebody. पाताल लोक के बाद ये बहुत ज़्यादा काम होने लगा टचवुड, बट उसके पहले जब बहुत ज़्यादा काम नहीं था, साल में एक आध या 2 साल में कोई एक आध ठीक सा काम. But I have worked with amazing directors of this country, starting from Priyadarshan sir, Kamal Hassan, Anurag Kashyap, Meghna Gulzar, Imtiaz Ali, Vipul Shah, अविनाश, न्यू जनरेशन में अविनाश अरुण, सुदीप शर्मा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया मैंने, और कमाल के एक्टर्स के साथ काम किया. मतलब मनीषा कोइराला जी से लेके अभी तक जितने भी जिनको हम देखते हुए बड़े हुए, उनके साथ भी, वहीदा रहमान जी. कमल सर के साथ मैंने एक फिल्म की थी, कमल हसन के साथ, विश्वरूप, उनमें जो सेकंड पार्ट था उसमें वहीदा जी थी. तो मेरा ही मानना है कि, और फिर जब आप नए एक्टर्स जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ काम करते, यू सी दैट न्यू एनर्जी एंड एवरीथिंग, जो कि ऐसा नहीं कि मेरे अंदर न्यू नहीं है, वो बस अ डिफरेंट एनर्जी, नॉट न्यू एनर्जी बट डिफरेंट एनर्जी, यू वुड से. एंड दे हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट इरा ऑफ कि उनके आइडल्स क्या रहे हैं, हाउ दे लुक अप यू एज एन एक्टर और द सिनेमा इटसेल्फ. तो आपको डिफरेंट एनर्जी समझ में आता है कि ओह अच्छा, ये तो कहीं और सी सोच है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बट तो मुझे लगता है कि ये हर दिन का वो है, और कभी कभी आप ऐसे मैस्मराइज्ड हो जाते हो कि यार क्या सही आदमी है, या बंदा है, या एक्टर है, मेल फीमेल डजंट मैटर. कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार क्यों आ गए ये सब, या मैं गलत आ गया हूँ, फिर वैसा लगता है. बट आई थिंक मोस्टली मेरे साथ ये हुआ, टच वुड, थैंक गॉड, कि मेरे आसपास जितने भी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया मैंने, और जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छे रहे, बहुत कुछ सीखा. Of all this, who's your favorite director? Do you have a favorite director की मार पड़ेगी? नहीं, एक का नाम ले. नहीं, ऐसा नहीं है. They all know that I love them, but मैं genuinely बोल रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी कलात्मक एक वो है. मतलब आप कमल सर के साथ काम करोगे, कमल हसन के साथ, आपको लगता है कि is there anything this man does not know about film making? Anything. वो मैं आज को भरोसा दिलाता हूँ इस बात का कि मेरे जो उस वक्त जो कैमरामैन थे, और कमल सर उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, मोशन कैप्चर कुछ मोमेंट लेना था उनको, और 117 या 118 SLR कैमरास लगे हुए हैं, कुछ तो भी चल रहा था. मैं बहुत नया था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था. 3 फिल्म कैमरास, एंड ही वाज ट्राइंग टू
मेक हिम अंडरस्टैंड कि इसको ऐसे करना है इस सीन को. एंड आई कुड सी हिज फेस कि ही इज नॉट, he doesn't know what he's saying. At some point of time said कि अनु you just roll, I'll see, मैं देख लूँगा एडिट पे क्या करना है, you just roll it. That evening मैं उनके रूम में था, हम वैसे ही बैठे हुए थे, कैमरामैन जो हमारे थे, एंड ही सेड कि यार मुझे ऐसा लगता है मैं कैमरा सीख रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे करते हुए. सो नाउ इमेजिन वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मेघना गुलजार, I so love her. She's so amazing. She's a dream director for any actor in the world. You work with her and you feel like मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं एक्टर बना. You feel so powerful as an actor, so proud of your craft and your profession. And then somebody like Anurag Kashyap, अभी करना है कुछ, तो अभी मैजिक होगा, अब यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है. आधे टाइम सीन लिखे नहीं होते या डिजाइन नहीं करना होता, उनको अभी करना होता है, उनको सीन के अंदर कुछ ऐसा कलात्मक करना कि तो नाउ यू आर ऑन योर टोज. देन यू वर्क विद इम्तियाज अली हु इज सो इंटरनलाइज्ड कि वो उनकी आवाज ही नहीं आती, वो उनको किसी को भी कुछ बताना तो कान में जाके बता रहे होंगे ताकि किसी की एनर्जी खराब ना हो. अविनाश अरुण, सच अ यंग डायरेक्टर एंड यू वर्क विद हिम. एंड लाइक मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है कि वो कुछ बोल रहा होता है बिना कहे, मैं कुछ समझ रहा हूँ बिना बोले. बहुत बार ऐसा होता है. मेरे पाताल लोक में कुछ नए एडीज थे सीजन 2 में, तो उनमें से एक ने एक दिन बोला कि यार क्या चल रहा है इन तीनों के बीच में. उधर सुदीप शर्मा बैठा है, उधर अविनाश बैठा हुआ कैमरा पे, मॉनिटर पर सुदीप शर्मा और फैसल बैठे और ये एक एक्टर बैठा है फ्रेम में. शॉट कट होता है, ये उसको देखता है, ये उसको देखते हैं, तीनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ लेते हैं. तो मुझे लगता है उनके साथ, इन सब के साथ अपनी एनर्जी है. So thank you for being part of this conversation. Here's to many more wonderful seasons of Paatal Lok, seasons of Janne Jaan, and seasons of magic. Thank you so much. Thank you for having me. It's always Thank you. pleasure.